everyone. Today I read class 4 English book lesson 14 by channel name is Study with Arini. Let's read lesson 14 सिंदबाद सेकेंड वॉइस सिंदबाद की दूसरी समुद्री यात्रा. We sailed for many months and stopped at some of the island. We gave our gods to the people of the island in exchange of their gods. One day we landed at an island where there were no people, though there seemed to be plenty of fruits, trees and fresh water. हम कई महीनों तक यात्रा करते रहे और कुछ द्वीपों पर रुके. हमने द्वीप पर के लोगों को उनके माल के बदले में अपना माल देते थे. एक दिन हम एक ऐसे द्वीप पर पहुंचे जहां कोई लोग नहीं रहते थे. हालांकि वहां बहुत सारे फलदार पेड़ और ताजा पानी था. My companions and I got out of the ship and went ashore. While companion wandered here and there gathering fruits and flowers and fruit, I sat down in a shady place and having had a hearty meal soon fell asleep. मैं और मेरे साथी जहाज से बाहर निकले और किनारे पर चले गए. सब साथी इधर उधर घूमकर फूल फल इकट्ठा कर रहे थे. मैं एक छायादार स्थान पर बैठ गया और भरपेट भोजन करके शीघ्र ही सो गया. How long I slept I do not know, but when I opened my eye, I saw with honor that was alone. Where my companion? I rushed to the shore and saw the ship splattering over the horizon. मैं कितनी देर सोया मुझे पता नहीं, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं भयभीत होकर देखा कि मैं अकेला हूँ. मेरे साथी कहाँ गए? मैं किनारे की ओर दौड़ा और देखा जहाज सीमा पर नहीं थी. I cursed my foolishness and wished that I had been contented to stay at home in safety. A little later, I became more calm. I presently took courage and thought of for a means to escape. I climbed a tall tree and looked around to see if I could find any signs of my life. मैं अपनी मूर्खता पर पछता रहा था और आशा कर रहा था कि मैं घर जल्दी और सावधानी से पहुंच सकूं. कुछ समय के लिए मैं एकदम शांत हो गया. मैं बचने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और चारों तरफ अपने जीवन का संकेत ढूंढने लगा. A huge dazzling white object at a distance catch my eye. I quietly got down from the tree and set off as fast as I could go toward it. As I drew near to it, seemed to me to be a white ball to immense size and height. It was smooth and soft to be touched and was impossible to climb. Of it presented no foothold. I walked around about it searching for some opening, but there was none. I count, however, that it was at least 50 places around. कुछ ही दूरी पर
एक बड़ी चमकदार सफेद वस्तु पर मेरी नजर पड़ी। मैं चुपचाप पेड़ से उतर गया और जितनी तेजी से मेरी नजर उस ओर जा सकती थी वहां गया। विशाल आकार और ऊंचाई की एक सफेद गेंद गेंद थी। यह कठोर स्पर्श था और इस पर चढ़ना असंभव था क्योंकि यह इतना चिकना और मुलायम था कि इसे खोलने का प्रयास नहीं किया जा सकता था। मैंने गिनना शुरू किया और मैंने देखा कि यह पूरा 50 कदम था। I sat plunging near the object. A huge black cloud darkened the sky and a sound like rushing water filled the air. I looked up and saw an harmonious bird flying down from the sky toward me. Then I remembered that I had often heard the sailor speak of a wonderful bird called a rock, and it occurred to me that the white object which has so puzzled me must be its egg. जैसे ही मैं उस वस्तु के पास बैठकर सोच रहा था, एक विशाल काले बादल ने आकाश को काला कर दिया और हवा में तेज पानी भर गया। मैंने ऊपर देखा तो एक विशाल पक्षी को आकाश से मेरी ओर उड़ते देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने अक्सर राक नामक एक अद्भुत पक्षी के से सुना था और यह मेरे दिमाग में आया कि जिस सफेद वस्तु से मुझे इतना आश्चर्यचकित कर दिया है वह उसका अंडा ही है। Sure ago the bird settled slow down upon it, covering it with its wing to keep it warm, and I sat trembling in fear close beside the egg in such a position that two of the bird's feet, which was as large as the trunk of a tree, was just in front of me. Taking off my turban, I bound myself securely to it with the linen in the hope that the rock, when it took flight next day, would bear me away from the desert island. बस पक्षी धीरे धीरे उस पर बैठ गया। उसे गर्म करने के लिए अपने पंखों से ढक दिया और मैं डर के मारे कांपते हुए अंडे के पास ऐसी स्थिति में बैठ गया कि उस पक्षी के पैर हों, जो एक पेड़ के तने जितने बड़े थे, बस मेरे सामने। मैंने अपनी पगड़ी को कपड़े से सुरक्षित रूप से बांध लिया, इस आशा में कि अगली सुबह वह मुझे अपने साथ सुनसान जगह से ले जाएगी। And this was precisely what had happened. As soon as the dawn appeared, the bird rose into the air, crying me up and up till I could no longer see the earth. And then suddenly it descended so swiftly that I almost lost consciousness. When I became aware that the rock had settled and I was once again upon solid ground, I hastily unbound my turban
from its food and freed myself, and that not a movement too soon. As I united the knot, the bird swooped upon a huge snake and killed it with a few balls from its powerful beaks. It picked up the death snake and rose into the air once more and soon disappeared for my view. ठीक यही हुआ। जैसे ही भोर हुई, पक्षी हवा में ऊपर उठ गया और मुझे तब तक ऊपर उठाता रहा जब तक कि मैं पृथ्वी को देखना बंद नहीं कर सका। और फिर अचानक वह इतनी तेज से नीचे आया कि मैं लगभग बेहोश ही हो गया। जब मुझे पता चला कि राख व्यवस्थित हो गया है और मैं एक बार फिर ठोस जमीन पर हूँ, तो मैंने जल्दी से अपनी पगड़ी को उसके पैर से खोल दिया और खुद को मुक्त कर लिया। और एक क्षण भी जल्दी नहीं, जैसे ही मैंने गांठ खोली, पक्षी ने एक विशाल सांप पर झपट्टा मारा और इसे अपने शक्तिशाली बीट से कुछ उछाल के साथ मार डाला। उसे लेकर एक बार फिर हवा में उड़ गया और जल्द ही मेरे विचार से गायब हो गया। When I had looked around me, I almost wept in mystery. The valley in which I found myself was deep and narrow, with no food or water. Oh, why had not I stayed on the other side of the island, where there was plenty of water and I was near the shore? Sleep chief rose up to the clouds, and there was no way of climb up their slide. As I wandered about looking for some means of escape, I saw that the ground was strewn with diamonds, some of them on an astonishing size, but my happiness was short-lived when I saw a huge black snake ring around formality. As the day grew hotter, the snake displayed into huge carnivores and only came out at night. जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैं लगभग रो ही पड़ा। वहाँ पर न खाने की व्यवस्था थी न पीने की। ओह, मैं द्वीप की मैं दूसरे किनारे क्यों नहीं उतरा, जहाँ पे बहुत सारा पानी और खाना था। यहाँ से बादलों तक उठी हुई थी पहाड़ें बादलों तक उठी हुई थी, जाने का रास्ता नहीं था। मैं साधन की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। तभी मैंने देखा कि जमीन हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। उसमें से कुछ आश्चर्यजनक आकार के थे, लेकिन जब मैंने विशाल काले सांपों को चारों ओर घूमते देखा तो मेरी खुशी काफूर हो गई। सौभाग्य से जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, सांप विशाल गुफाओं में गायब हो गए और केवल रात में ही बाहर आए। दिन भर घाटी में ऊपर नीचे घूमता रहा। आखिरकार थकान से व्याकुल होकर एक चट्टान पर बैठ गया। अचानक मैंने अपने पीछे एक जोर की आवाज सुनी। यह बिल्कुल
एक ताजा मांस था और उस पर लाल रंग था। कई और टुकड़े स्थानों से लुढ़क रहे थे। हीरो की प्रसिद्ध घाटी में उस रास्ते के बारे में मैंने बहुत कहानियां सुनी थी, जिसके द्वारा कुछ व्यापारी हीरे प्राप्त करने के लिए आते। वे एक कपड़े से उन्हें चिपकाते और मांस के टुकड़े चिपकाते, और जिस रास्ते से कुछ चील जाते, वे उसे वहां फेंक देते थे। चील मांस पर झपटे मारते और मांस को अपने पास ले जाते, और जब वे लोग उन्हें डराने लगते, पक्षी उड़ जाते, फिर वे हीरे लेकर आ जाते। I took courage and began to think of a means to escape. I began to pick up largest diamond I could find and tied them to my belt. I then tied myself with my turban to the large piece of meat and lay down waiting of the eagles. I soon heard the flapping of wings. A young eagle picked up the piece of meat to which I was tied and flew me to its nest. I unit myself quickly. Luckily for me, the merchant began shouting me frightened the bird away. Some of them promised to help me, and sailing with them, I returned to Baghdad. मैंने साहस किया और बचने का उपाय सोचने लगा। मैंने जो सबसे बड़े हीरे मिले उन्हें चुनना शुरू किया और उन्हें अपनी बेल्ट में बांध लिया। फिर मैंने खुद को अपनी पगड़ी से मांस के बड़े टुकड़े से बांध लिया और चील की प्रतीक्षा में लेट गया। जल्द ही मैंने पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। एक विशाल चील ने मांस का वह टुकड़ा उठा लिया जिससे मैं बंधा हुआ था और मुझे अपने घोंसले में ले गया। मैंने जल्दी से अपने आप को बंधन से मुक्त किया। सौभाग्य से मेरे लिए व्यापारियों ने पक्षी को डराने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ मेरी मदद करने का वादा किया और उनके साथ नौकायन करते हुए बागदाद लौट आया। फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से हम सभी इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। सिंदबाद sailed for many months. The huge white dazzle object was an eagle. The bird was named Rock. Sinbad went to stay back on the uninhabited island. True, he found a rock sitting on her egg close to the shore. False. Sinbad escaped from the rock nest by riding out on its back. True, the valley of diamond was full of large snakes. False, the snake guarded the diamond day and night. False. चलिए जल्दी से आंसर देखते हैं। What did the sailor give to the people of the island the exchange of their gods? जो नाविक था वो लोगों को उनके सामान के बदले क्या देता था? तो इसका आंसर रहेगा द सेलर गिव। उसके बाद हम सभी नीचे देखेंगे, यहाँ पे अवर काट के हम सभी देयर लिखेंगे। देयर गॉड्स टू द पीपल ऑफ द आइलैंड इन एक्सचेंज ऑफ देयर गॉड्स। ओके, मतलब वो उन लोग के गॉड्स के बदले, मतलब उन लोग के सामान के बदले वो अपना सामान देता था। What did Sindbad do when he found himself alone at the island? सिंदबाद ने क्या किया जब वो अपने आप को आइलैंड पे अकेला पाया? तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ। सिंदबाद क्लाइंब ए टाल ट्री व्हेन ही
found himself alone at an island. सिंदबाद एक बड़े से ट्री पे ये लंबे से ट्री पे चढ़ गया और जब वो अपने आप को अकेला पाया आइलैंड पे। ओके, मैं आपको छोटा आंसर लिखवाई हूँ, अगर आपको बड़े आंसर चाहिए एक्सप्लेन में तो आप फिर मुझे कमेंट करिएगा। हाउ डिड सिंदबाद लेफ्ट अलोन ऑन द आइलैंड। अब सिंदबाद आइलैंड पे अकेला कैसे छूट गया, तो इसका रहेगा सिंदबाद लेफ्ट अलोन ऑन आइलैंड बिकॉज ऑफ हिज कर्सली। अपने आलसपन से, ठीक है, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आप क्यूजरी लिखिएगा, अब वो छूट गया है। फिर चौथा देखते हैं, व्हाट डिड सिंदबाद सी इन स्काई। स्काई में सिंदबाद ने क्या देखा। सिंदबाद सी इन द स्काई एन इनॉर्मस बर्ड। एक सिंदबाद ने एक बड़े आकार का पक्षी देखा आकाश में। वेयर डिड द बर्ड लीव सिंदबाद। जो बर्ड थी उसने सिंदबाद को कहाँ छोड़ा, तो द बर्ड लीव सिंदबाद द वैली ऑफ डायमंड्स। ठीक है, अच्छा, डायमंड की हीरे की घाटी में सिंदबाद को वो जो बर्ड थी उसने छोड़ा। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा और सपोर्ट करिएगा, लाइक या सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।